plus and Cl minus. So Na plus, we can consider them at the corners plus FCC. So we can say means face center plus corner as a whole, we can say FCC also. And then directly we can write Cl minus will be octahedral. So like A and for B. For A, we can write how many total atoms. For corner, it will be 1 into 1 by 8 plus A atoms also at the face center, total face center atoms are 6. But as they have mentioned that along one of the axes, the face centered atoms are removed. So how many? If you see face center atoms, then total 6 faces are there. So 6 faces, let us take any axis. So one axis will cut 2 face centers. Out of 6, 2 will be gone into its contribution half. So it is 1 and 6 minus 2 is, you can say 4 by 2 is 2. So 2 plus 1 total 3. So we can say that A3, A3. And this B type, it will be in the octahedral void of that FCC. That means it is 4. So A3, B4. So the option will be D. Question number 2. Ice crystallizes in hexagonal lattice having volume of unit cell. So volume is given 132 into 10 to the power minus 24 centimeter cube. Density is given 0.92 gram per centimeter cube. Since we know that density is mass per volume, so they are asking the number of H2O molecule per unit cell. So per unit cell H2O molecule kitna hai? So density we know, volume we know. Okay, mass. So from there we can calculate mass, but first of all we need to see how many molecules they are asking. So we will just consider, let us consider n molecules of water present. So n molecules of H2O in that lattice. Let us assume n molecules. Now if we see like mass of n molecules of water in this packing will be equal to 18 into n by the Avogadro's constant, mass of n molecules of water in this hexagonal packing. So we can also write this is 18n by 6.022 10 to the power 23. Now, so this is the mass. So mass divided by volume means this volume equals to density. So can I write density, that is this much, 0.92 equal to this mass is this much, 18n by 6.022 10 to the power 23. And then volume will be this much, 132 into 10 to the power minus 24. So solve this, you will get the answer of n, and that will be 4. Okay, so you will get the answer 4. That is your option D. In the question number 3, you can see normal spinel having Mg2 plus ion in 1/8 of tetrahedral holes. Okay, so total अगर tetrahedral holes होते हैं कितना, tetrahedral holes होंगे 2 into z, यानी कि अगर तुम्हारा FCC है तो फिर 2 into 4 that is 8 इस टाइप का. तो tetrahedral 8 में से एक में Mg2 plus है. अच्छा, एंड एल्यूमिनियम ट्रिप्लस कैटायन कितना है, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल. अब ऑक्टाहेड्रल होल कितना होता है, जेड. मान लो कोई एफसीसी स्ट्रक्चर है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल होल अगर 4 है, 4 में से 1 हाफ यानी कि 2 एल्यूमिनियम ट्रिप्लस हो जाएगा. सो देखते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक Mg2 प्लस मान लो, इमेजिन करो 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस इमेजिन करो, तो ऑलरेडी 2 कैटायन आ गया, इसका चार्ज 2 प्लस इसका चार्ज 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 ऑलरेडी 8 चार्जेस हो गया. उसको बैलेंस करने के लिए कोई एनायन आएगा. अब इसमें एनायन क्या लेना है तुम्हें, इफ O2 माइनस जो होता है ये स्पाइरल नॉर्मल का जो स्ट्रक्चर, उसमें O2 माइनस आयन इज रिप्लेस्ड बाय X माइनस 8/3. तो X जो हमें हाइड्रोजन लेना है ऑक्सीजन के जगह, दैट इज माइनस 8/3 चार्जेस.
सो फॉर्मूला ऑफ न्यू कंपाउंड, सो ऑब्वियसली वी कैन सी दैट ये एक ही लेनी है हमें, ये 2 लेना है। सो यहाँ तक अगर हम देखें, एल्यूमिनियम का 6 चार्ज हो गया और Mg का 2+, टोटल तो 8 हो गया। अब 8 को बैलेंस करने के लिए X आया, तो इसका चार्ज -8/3, इसका मतलब ये हो जाएगा 3, क्योंकि अगर ये 3 हो गया तो इसका चार्ज +6 + 2 दैट इज +8, तो यहाँ पे एक X का चार्जेस -8/3 ही होगी। सो दिस वन नेक्स्ट, सो दिस इज ऑप्शन बी। 4. Which of the following Fisher's projection formula is identical to D-glyceraldehyde? So what is D-glyceraldehyde? So this D is not the dextrolavo, small d, small l. This is capital D, okay, which will denote, you can say the right hand side, okay. अब right hand side मतलब किसका right hand side? हम देखेंगे इसको ऐसे लिख के, the D-glyceraldehyde, glyceraldehyde, this is, there will be one aldehyde group CHO, okay, and then CH2OH, OH, and you can say correct option is this one, H, ये दिया हुआ है। So now पहले D-glyceraldehyde जो रेफरेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो हमेशा ध्यान देना, फिशर में लिखने से द ऑक्सीडाइज्ड पार्ट रिटन अबव, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं रिड्यूस पार्ट, ठीक है। सो ये तो तुम्हारा जो ऑप्शन है करेक्ट वो वाला, बट फर्स्ट देखो D-glyceraldehyde अगर हमें लिखना है रेफरेंस तो है क्या, एल्डिहाइड ग्रुप होगा यहाँ, और वर्टिकली ये हो गया तुम्हारा एल्कोहल ग्रुप। अगर राइट हैंड साइड में OH है, लेफ्ट हैंड साइड में H है, तो वो D-glyceraldehyde होती है, जैसे ये। और अगर ऐसे हम लिखते हैं ना उल्टा, तो ये हो जाता तुम्हारा L-glyceraldehyde, L होता ये D, ये D ये L, तो दे आर टॉकिंग अबाउट D, तो ये। तो अब क्या करना है हमें, हमें डायरेक्ट ये आंसर्स तो ऐसे यहाँ पे ऑप्शंस में अगर देखेंगे, सो A B C D, सो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें ध्यान देके रखना है कि D-glyceraldehyde का जो है रेफरेंस का अपना जो इसका ये रोटेशन क्या है, ध्यान देना इसमें से ऑल द 4 में से 3 हायर प्रायोरिटी ग्रुप को ढूंढो। इट इज हैविंग प्रायोरिटी लेवल 1, मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, क्योंकि दिस इज ऑक्सीजन, है ना, CIP रूल से जो हम लोग देखते हैं प्रायोरिटी। देन CHO इज सेकंड प्रायोरिटी, CH2OH इज थर्ड प्रायोरिटी। 1 से 2 से 3 अगर आ रहे हो ऐसे, तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस होना चाहिए था, पर हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल में होने के कारण ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन आर। तो यानी कि तुम्हें ये पता है कि D-glyceraldehyde इज अ R कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज, यानी कि अभी जो 4 ऑप्शन है उसमें से तुम्हें ये ढूंढना था कि व्हिच इज R कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि वहां पर भी ये जो है देखो इधर उधर को घुमा फिरा के इसको लिखा गया था, बाकी ऑप्शंस में नहीं, सी ऑप्शंस में ये पॉसिबल है, क्योंकि CHO, CH2OH एंड OH को देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये कैसे जा रहा है 1 2 3, ठीक है। सो इसमें आइडेंटिकल टू D-glyceraldehyde पूछा गया है, CH2OH, OH, CHO, H, ठीक है। तो ये तुम्हारा था ऐसे S कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये हॉरिजॉन्टल में होने के कारण इसका हो गया था R, तो इसमें तुम्हारा R आना चाहिए, कुछ ऑप्शन विल शो यू R, एक बार देख लेना है। तो ये हो जाएगा 1 OH है ना 1, फिर ये आ जाएगा 2 में CHO, फिर CH2OH, लेकिन ये 1 2 सेकंड 1 2 हो गया 3, ये तुम्हारा एंटी ही जा रहा है, एंटी में वर्टिकल होने से तो जो है वही रहता है। एक सेकंड ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें, बाकी की इसमें हो सकता है ABCD में चारों देखते हैं ऑप्शंस, वेट 1 सेकंड। The logic is simple. They are asking identical to D-glyceraldehyde. तो D-glyceraldehyde क्या है मैंने बता दिया, राइट हैंड साइड शुड बी OH, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी H, ऊपर CHO होगी, ऑक्सीडाइज पार्ट हमेशा ऊपर और नीचे CH2OH। इसमें ध्यान से देखते हैं, ये 1 है प्रायोरिटी, ये 2 है, ये 3 है ऑब्वियसली, क्योंकि CIP रूल के हिसाब से, तो 1 2 3 दिस इज योर, यू कैन से दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज, और उसके लिए ये हो गया R, ठीक है। यहाँ पे
कौन सा होगा तो फिर चेक करना पड़ेगा। वन OH CHO CH2OH, यहाँ कौन सा ऑप्शन ऐसा है? OH CHO CH2OH एंड H, तब होगा 1, होगा 2 3, तब ये हो जाएगा R क्लॉकवाइज। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। OH CHO, इसमें तो भी नहीं है। OH CHO CH2OH, अच्छा द क्वेश्चन पेपर आई हैव, यहाँ पे तो चारों ऑप्शन मुझे सेम ही दिख रही है। अच्छा OHCHO। क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग ध्यान देना, अभी तो एग्जाम में चला गया पेपर, इसमें चारों ऑप्शन सेम है एक्चुअली, इसीलिए तो ऑल द 4 ऑप्शंस आई एम सीइंग सेम, तो इसमें तुम लोग को सबको मार्क्स मिल जाएगा जो भी लिखो। बट अभी क्या कर सकते हैं, ABCD, ठीक है, जस्ट लीव दिस वन बिकॉज ABCD चारों ऑप्शन सेम आ गया पेपर में। सो अगर ऐसा कुछ होता ना आंसर लाइक 1 2 3 तब हो जाता, ठीक है। जस्ट उसका कॉन्सेप्ट ले लो और आगे बढ़ो। ABCD चारों ऑप्शन में देख रही हूँ क्वेश्चन पेपर में सेम है, इसीलिए गड़बड़, ठीक है। चलो नेक्स्ट 5। सो 5 में द करेक्ट स्टेरियोकेमिकल नेम ऑफ, ओके, इसमें 2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और बाकी तो हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन लास्ट में एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि एस्टर है। एस्टर का नाम हम लोग ऐसे लिखते हैं एल्काइल एल्केनोइट। सो एक काम करना है इसके लिए, जो COOCH3 है, सुनते जाना, मैं डायरेक्ट नाम लिख ही देती हूँ, फिर स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, तो बनाइए इसमें CH2CH CCH3COOCH3, ध्यान देना ये वाला पार्ट COO, ये CH3 जो है वो हो गया मिथाइल। सो एल्काइल एल्कानोएट में ये मिथाइल आएगा और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7। सो ये हेप्ट हो गया, पता चल रहा है, और जो भी डबल बॉन्ड है वो 2 में है 5 में है। सो यहाँ पे जो है ना उसमें फिर EZ वो भी दिया हुआ है, मतलब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, ये देखो इधर मिथाइल है और इधर ये है, तो इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी तो नीचे हुआ और इन दोनों में से भी नीचे हुआ, यानी कि ये जेड होगी। और यहाँ से अगर देखोगे नीचे हायर प्रायोरिटी है और इसका ऊपर हायर प्रायोरिटी है, तो ये अपोजिट में हायर प्रायोरिटी होने के कारण ये ई होगी। सो नाउ वी नो कहाँ जेड है कहाँ ई है। तो देखो which option you should टिक। करेक्ट ऑप्शन इसमें ये हो गया मिथाइल, मिथाइल करके स्टार्ट होगा वहां तक ठीक है। मिथाइल 1 2 2 में एक मिथाइल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर 2 मिथाइल, फिर हेप्टा, फिर 2Z5E, 2Z5E, ओके, डाइइनोएट, 2Z5E डाइइनोएट, ऑप्शन डी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट when an optically active compound is placed in 10 decimeter tube is present 20 gram in 200 ml। अच्छा, कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब भी दिया हुआ है, उसके थ्रू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को भेजोगे, देन ऑब्वियसली जो भी रोटेशन होगी है ना उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, रोटेट्स, हाँ दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके, कैलकुलेट एंगल ऑफ रोटेशन एंड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, तो दोनों बतानी है इफ अबव सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। पहले वो कितना था 200 ml, 20 ग्राम इन 200 ml, बाद में इसको डाइल्यूट जब कर देंगे देन वो कितना 1 लीटर 1000 ml का बना देना है। ओके, अब देखते हैं इसमें। सो जो भी इसकी होगी रोटेशन, थीटा नॉट सी ऐसे लिख लेते हैं, सी फॉर कंसंट्रेशन, एल फॉर लेंथ। सो ये 30 दिया हुआ है और ये थीटा नॉट, ये तो स्पेसिफिक रोटेशन होगी,
एंड इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हम लिखेंगे ग्राम पर ml, तो ग्राम कितना 20, ml कितना 200, and CL, L for the length of polarimeter in decimeter, that is 10. So solving this, theta naught is 30. तो हमें ये पता चल गई कि ये 30 है, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। सो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो 30। अब क्या करेंगे, उसी को दूसरे जो सिचुएशन है उसके लिए अप्लाई करते हैं। क्या है, जो भी वो थीटा या क्यू जिससे डिनोट कितना होगा, थीटा नॉट इंटू फिर वही सी इंटू एल। अभी थीटा नॉट तो पता चल गया 30, और फिर सी कितना है कॉन्सेंट्रेशन 20 ग्राम आउट ऑफ अभी 1000 लिखेंगे, एंड एल 10 डेसीमीटर। तो इसको सॉल्व करते हुए कितना हुआ, थीटा 6 डिग्री। सो इसमें आंसर हो जाएगा पहला वाला, द एंगल ऑफ रोटेशन व्हेन डाइल्यूटेड टू 1 liter is 6 degree and specific angle of rotation is 30 degree, and hence 6 degree 30 degree, 6 degree 30 degree, B 6 degree and 30 degree। ठीक है, नेक्स्ट इधर ही कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। सो इन क्वेश्चन नंबर 7 which will form geometrical isomer। अच्छा, तो geometrical isomer तो पहला भी बनाएगा, दूसरा भी बनाएगा ऑक्साई में, तीसरा भी बनाएगा, मतलब इसका आंसर होगा डी, ऑल। ऑल। क्वेश्चन नंबर 8। which is optically inactive। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए सिमेट्री ढूंढ लो। इसमें तो बी में, सी में, डी में साफ साफ दिखाई दे रहा है देयर इज नो सिमेट्री। सो इसमें प्लेन ऑफ इसमें हो जाएगा तुम्हारा ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड पहला वाला, क्योंकि उसमें देख सकते हो 1 2 3 तीन ऐसे अगर ये है क्या बोलते हैं कंटिन्यूअसली जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, पोलिन है, जैसे ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन ए, ठीक है। सो ऑड नंबर ऑफ ये जो पोलिन जो है, पोलिन विद ऑड नंबर ऑफ स्पीसीज, तो इसमें तुम्हारा ज्योमेट्रिकल होगा ना कि ऑप्टिकल होगा, ठीक है। सो ए में ज्योमेट्रिकल होगा, नॉट ऑप्टिकल, इसलिए वही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9। How many minimum number of carbon atom required for position geometrical isomerism in alkene? तो alkene के लिए obviously देखोगे तो पहला स्टार्ट होगा इथीन, इथीन के बाद आएगा अगर प्रोपीन, प्रोपीन के बाद ब्यूटीन, तो ब्यूटीन से स्टार्ट कर सकते हो ना पोजीशन, कि ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, प्रोपीन तक तो हम कोई पोजीशन नहीं बता सकते। तो यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन में से पोजीशन के लिए तो 4 हो गया। ज्योमेट्रिकल के लिए अगर देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल के लिए तुम्हें सिस ट्रांस करनी होगी, और वो भी प्रोपीन के लिए पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि देख सकते हो ना प्रोपीन में क्या होती है, CH3 CH2 मान लो, तो ये कार्बन में तो अलग अलग है, ये कार्बन में है क्या, नहीं। सो ब्यूट से स्टार्ट होगा, ब्यूटीन से, ठीक है। यानी कि कार्बन कितना 4, कितना कार्बन 4, चाहे पोजिशनल के लिए हो चाहे ज्योमेट्रिकल के लिए, पोजिशनल एंड ज्योमेट्रिकल दोनों टाइप के आइसोमरिज्म के लिए एल्कीन में मिनिमम 4 कार्बन होना जरूरी है। Which of the following structure represent a chiral compound? तो chiral के लिए वही चेक करो, the sp3 hybridized carbon having 4 different group, and I can see the option will be D. So here the option will be D. ये 4,4 9 4,4 B था, और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो होगा D। क्यों D होगा मैं बता देती हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देख सकते हो द लास्ट वन, वहां पे राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है एंड लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है अलग है, और बीच में जो देख सकते हो वहां पे एक ऐसा वेज में हाइड्रोजन है, उस कार्बन में इधर डैश में मिथाइल है, लेफ्ट में फिर सी इस टाइप का एक है, और राइट में कुछ। सो यू कैन सी देयर इज अ कार्बन हैविंग a sp3 hybridization having different 4 groups, so D होगी, वेरी सिंपल। 11 which two of the following compounds are identical? इसमें identical कौन सा होगा, उसके लिए देखो कि एग्जैक्टली इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 में देखो, जो ऑक्सीजन मतलब ये साइक्लिक ईथर जो है उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐसे करके पोजीशंस देखो 2 एंड 4 का सेम है एग्जैक्टली, वहां पे डैश डैश एंड बीच में क्या है वेज है, और 4 में क्या है वेज वेज डैश है, ये करेक्ट होगी। क्योंकि मेरे तरफ से जो मॉलिक्यूल मुझे ऐसे डैश डैश एंड बीच में वेज दिखेगी, वो तुम्हें दूसरा ऑपोजिट साइड वाले को मॉलिक्यूल क्या दिखेगी,
वही उसका अपोजिट, मतलब इधर से देखूं तो वो 2 वाला ऑप्शन जो है, मैं अगर 2 वाला देख रहे हो, और द अपोजिट साइड वाले इंसान को क्या दिखेगा, 4 दिखेगा, द सेम मॉलिक्यूल फ्रॉम 2 व्यू। ठीक है, सो वी कैन से देयर मिरर इमेज, सो ये 2 एंड यू कैन से आइडेंटिकल जो है मिरर 2 एंड 4, सो ये हो जाएगा बी, सो 11 का हो जाएगा बी। यू कैन चेक इटसेल्फ लाइक OH 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 का जो है डैश डैश वेज है बीच में, या फिर वेज वेज डैश है बीच में, तो सेम, बाकी तो सेम नहीं होगी। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ दिस वन? ओके, तो स्टीरियोआइसोमर्स हम लोगों को देखना होगा कैलकुलेट करके। CH3 ये, सो हियर इफ वी सी, हमें एक ऐसे ज्योमेट्रिकल सेंटर मिला और यहाँ एक कारल सेंटर मिला, है ना, और ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? दिस इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में था फॉर्मूला 2 टू द पावर n, n कितना है, 1 2, 2 सेंटर है, 2 टू द पावर 2, सो द आंसर विल बी 4, 4 आंसर माने ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 13, so 13 में है the number of optically active compound in the isomer of C4H9Br। अच्छा, C4H9Br में, C4H9Br में ये देख सकते हो आंसरिंग फैक्टर इसकी होगी 1, तो सिंगल सिंगल ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करो, यहाँ Br लगाओ, ठीक है ना, बाकी हाइड्रोजन, फिर एक तो ये हो सकते हैं 1 2 3, एक Br यहाँ लगाए ना, तो एक काम करो, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोम, हाउ नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स इन दिस वन। ओके, एक तो ऐसा भी हो सकता है कि Br यहाँ लगा के यहाँ लगाओ, ठीक है, देखते हैं यहाँ, तो Br वहाँ, बाकी सेम, फिर नाउ ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट, यहाँ तक तो ऑप्टिकली एक्टिव कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, इधर भी इसमें भी नहीं, एक सेकंड रुकना, इसमें अगर देखें C4H9 Br में C4 1 2 3 4, ठीक है, तो इस कार्बन में क्या है, 2 हाइड्रोजन हो गया ना, तो अलग नहीं होगी ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, और देखते हैं तो फिर, तो Br को वहां लगा के देखते हैं, ऐसा C था ही, यहाँ Br लगा के देखते हैं, तब होगा क्या, तब भी नहीं, तो कब होगा तो फिर देखते हैं, इसमें इसमें Br था, एक सेकंड रुकना, Br था, मिथाइल, इथाइल और एक हाइड्रोजन, है ना, ऑल 4 ग्रुप्स डिफरेंट, इसमें हो सकता था, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, और कुछ ऑप्शंस अगर हैं तो देख लेते हैं, और तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, तो उसके वजह से आंसर होगी हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स, तो अगर एक ऐसा साइट है जैसे कि ये वाला स्टार लगा देते हैं, तो इसका डी फॉर्म भी होगा, एल फॉर्म भी होगा, तो 2 कंपाउंड्स 2, सो 13 का आंसर हो जाना चाहिए 2, मतलब बी, बी ऑप्शन, ठीक है, सो बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, which species exhibit plane of symmetry, तो ये तो देख के पता लग रहा है डी ऑप्शन होगी, ठीक है, सो ये हो जाएगी डी ऑप्शन, यू कैन सी डी में ऐसे बीच में से एक प्लेन तुम कट कर सकते हो, सो 14 का डी होगा। 15, 15 का हो गया which correct, okay, write correct order of reactivity of following halogen derivative towards, देखो AgNO3 डालने पर Ag प्लस क्या करता है, हेलोजन Cl माइनस को निकाल के AgCl पीपीटी करता है। अब Cl माइनस को कौन कब इजीली निकाल पाएगा AgNO3, जब Cl माइनस आने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होने की चांसेस है, तो अगर वन देखो ना, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस कर सकता है वो, क्योंकि जैसे ही Cl जाएगा वो एरोमेटिसिटी अटेन कर लेगा, है ना, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे है, और वहां पे एक प्लस आ गया, तो इट विल अटेन एरोमेटिसिटी, सो एज इट विल अटेन एरोमेटिसिटी, वन जो है ऑप्शन, इसमें 5 है टोटल, वो 5 को अरेंज करने दिया है,
तो 1 will be having the highest you can say chance of reactivity towards the AgNO3। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ठीक है वो एरोमेटिकली बात आ गई। इसके बाद तो ये भी हो सकता है लाइक लास्ट वन देखो जो 3 जो PH3 CCl है, मतलब फिनाइल 3 रिंग C के साथ लगा हुआ अगर है, C पे जब कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो वो भी मोर स्टेबल ही होगा। इसके बाद फिर बेंजाइल है PHCH2Cl जो है 4, यानी कि 1 5 4 फिर 3 होगी क्योंकि वो 3 डिग्री जो कार्बन से जा रही है, एंड लास्ट में वो हो जाएगा अल्फा अनसैचुरेशन जो सेकंड है ऑप्शन में CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, सो ऑर्डर में अगर बताऊं 15 का तो फिर पहले 1 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2। That means the option will be A. So your answer will be A. हाँ 16 में तो ये पता चल ही रहा है, इसमें एक एस्टर ग्रुप है COO-C2H5 एंड नीचे जो है COCl। ठीक है, सो COCl विल बी लोअर प्रायोरिटी ग्रुप एंड एस्टर विल बी हाई प्रायोरिटी ग्रुप, यानी कि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होने के बावजूद भी इसमें हमारा जो नाम होगा इस IUPAC ये जो कंपाउंड है उसकी IUPAC नेम जो होगी इट विल बी रिलेटेड टू एस्टर। सो एस्टर में कैसे लिखते हैं इस टाइप का कि ये बेंजोइक एसिड का एस्टर है। ध्यान से देखो एक बेंजीन है उसमें कुछ COCl है, ठीक है, बेंजीन में COO-C2H5 ऐसे, अगर C2H5 नहीं होके H होता ना तो ये बेंजीन में COOH हो जाता, बेंजोइक एसिड हो जाता, यानी कि ये बेंजोएट है कहीं ना कहीं, दिस इज बेंजोएट एस्टर। और वो एस्टर में उधर क्या लगा हुआ है C2H5 एल्काइल लगा हुआ है, यानी कि इथाइल बेंजोएट है ये, है ना। अब बात ये है लेकिन बेंजोएट में देख सकते हो जो COO-C2H5 का जो COO का C है उसके साथ जो बेंजीन का कार्बन लगा हुआ है उसका जो नेक्स्ट है उसी में COCl है। सो COCl मतलब क्या है, ये कार्बोनिल है, CO मतलब कार्बोनिल एंड Cl मतलब क्लोरो। तो इसको ना हम जब सब्स्टिट्यूएंट हिसाब से लिखते हैं उसको COCl को क्लोरोकार्बोनिल लिखते हैं, यानी कि ये नाम हो जाएगा इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनिल बेंजोएट। तो ये हो जाएगा इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनिल बेंजोएट, इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनिल बेंजोएट। बेसिक स्ट्रेंथ, अब इस बेसिक स्ट्रेंथ में मेनली क्या देखना है, वही लोन पेयर डोनेशन है ना। और अगर कहीं SIP हो गया ना तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, मतलब स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, अगर SIP हो गया तो उस बेस का बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। यहाँ पे मुझे वो ऑर्थो पोजीशन में जो होने से SIP इफेक्ट होती है वो Q में दिख रही है, यानी कि Q जो है तो फिर थोड़ा पीछे जाएगा। और एक चीज लेकिन है यहाँ पे जो लास्ट S है उसका तो और घट जाएगा क्योंकि NO2 ग्रुप है, Q में ET है, S में NO2 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों बाद में। तो पहले आया तो फिर PNR R में ज्यादा होगा बिकॉज दिस इज 2 डिग्री, इथाइल जो है वो प्लस I इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रही है, यानी कि ऑर्डर बता दूं तो RPQS। सो 17 की हो जाएगी B ऑप्शन RPQS। और 16 का क्या था ऑप्शन, मैंने जो नाम लिखा वो कौन से ऑप्शन में था 16 का C। 18 देख लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C OCH3 Ag2 प्लस H प्लस H2। अच्छा, तो इसमें अभी देखते हैं क्या होगा। सो ये जो है इसमें हम लोग नॉर्मल मार्कोव-निकोव रूल से हम लोग ऐड कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल जो मार्कोव-निकोव रूल से ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C OCH3 ऐसे था, और यहाँ जो Ag2 प्लस के प्रेजेंस में H प्लस एंड वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल H प्लस आएगा। अब आएगा कहाँ, तो देखो ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो प्लस यहाँ आए तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू ये बहुत स्टेबल हो सकता है यहाँ प्लस होने से, यानी कि यहाँ पे आके हाइड्रोजन अटैच होगा। तो देखो ये हो गया CH3, ये C बिकम्स व्हाट CH, ट्रिपल बॉन्ड बिकम्स व्हाट डबल बॉन्ड C, और C पे एक आ गया प्लस मान लो, और उसी प्लस में फिर वाटर आएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। आने के बाद फाइनली बना CH, ध्यान देते जाना CH3, फिर ये बना CH, फिर डबल बॉन्ड C प्लस में आ गया H2O, फिर एक H प्लस निकल जाता है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ OH, फिर OCH3। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये इनोल है, C डबल बॉन्ड C और OH। हम जानते हैं कि इनोल जब भी फॉर्म होता है वो कीटो फॉर्म में चला जाता है, वो कीटो फॉर्म में चला जाता है। कीटो मतलब क्या है,
OH का जो H है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राई सिस्टम है ना, H यहाँ आ जाएगा, तो CH3CH ये ऐसे CH3CH will become और एक हाइड्रोजन आ जाएगा CH3CH2, so it will become CH3CH2, then ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और बाकी का जो है तो है ही वो CH3, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ 19 में तो ये देखना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन उसी का इजीली होगा जो इजीली ब्रेक होके लाइक मोर स्टेबल फ्री रेडिकल दे सकता है। तो इसमें अगर मैं देखूं जो C6H5H है, मतलब बेंजीन का हाइड्रोजन निकालना वो तो इतना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट थर्ड में CH2 डबल बॉन्ड CH2H, तो उसमें तो जो फ्री रेडिकल बनेगा थोड़ा बहुत ये जो डबल बॉन्ड के साथ वो है एलाइलिक पोजीशन में, उसकी वजह से थोड़ा स्टेबल हो जाएगा और 2 इज मोर स्टेबल देन 1। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 19 का आंसर होना चाहिए 4 1 2 3 4 1 2 3 सी होगा, ठीक है। सो बेंजीन से हाइड्रोजन निकालना सबसे डिफिकल्ट, इसीलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसीजन एनर्जी जरूरत पड़ेगी, इसलिए 4 सबसे आगे। फिर होगा एकदम जो पहले वाला CH4 से H निकालना, फिर इसके बाद 2 और सबसे कम एनर्जी चाहिए होगी 3 के केस में, क्योंकि 3 के केस जो है वो एलाइलिक कंडीशन है। सो 19 सी। 20 देखते हैं अभी। The arrangement of CH3 whole 3 C, okay, CH3 whole 2 CH, CH3 CH2 ऐसे करके when attracted to benzene or unsaturated group in increasing activating effect. So activating effect के हिसाब से देखा जाए तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन ये वाली पॉइंट देख लो, हाइपर कंजुगेशन कहाँ ज्यादा, प्लस H कहाँ ज्यादा वो दिखा सकता है। तो ये तो ऑर्डर ये हो जाएगी CH3 CH2 जो है ग्रुप वो सबसे ज्यादा दिखा पाएगी, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए करेक्ट। 21. Which of the following compound is incapable of exhibiting tautomerism? Tautomerism कौन नहीं दिखा सकता इसमें से? So tautomerism, tautomerism के लिए अल्फा हाइड्रोजन होनी जरूरी है। Which of the following compound is incapable of exhibiting tautomerism? तो पहले वाले में तो हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन से, सेकंड में भी, बी में भी हो जाएगा, और लास्ट जो डी दिया हुआ है वो इनोल फॉर्म में है, और वो इनोल फॉर्म में अगर ओ का ऐसे आया, हाँ उसमें तो पॉसिबल है। सो द आंसर विल बी सी। 21 के सी में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 22। 22 में बोला कि ट्रिपलेट कार्बन मोर स्टेबल देन सिंगलेट, हाँ वो सही है। ट्रिपलेट कार्बन सी is sp hybridized and in single carbon singlet carbon C is sp2, वो भी सही है। पर अब पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट 1 2 ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। देखो ट्रिपलेट कार्बिन एंड सिंगलेट में से इन जनरल ट्रिपलेट कार्बिन मोर स्टेबल होता है, अगर बाई चांस बैक बॉन्डिंग की बात आई तब तो सिंगलेट होगी, बट इन जनरल वो स्टेटमेंट सही है कि ट्रिपलेट कार्बिन मोर स्टेबल देन सिंगलेट। सेकंड बोला इन ट्रिपलेट कार्बिन सी इज मतलब कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज, ये सही है। ट्रिपलेट इसीलिए है क्योंकि उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, उसमें पेयर नहीं रहता, अनपेयर अनपेयर करके रहता है, तो वो sp हाइब्रिडाइज होती है, ठीक है। एंड सिंगलेट कार्बन जो है sp2 वो भी सही है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ स्टेटमेंट 1 भी ट्रू 2 भी ट्रू, बट ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट 1। तो यानी कि मैं लिखूं तो ट्रू ट्रू, बट स्टेटमेंट एक सेकंड रुकना, हाइब्रिडाइजेशन देयर विल बी लेस रिपल्शन, ये बोल सकते हैं, तो इसमें ई हो जाएगा। 22 दोनों सही है, ट्रू ट्रू तो है ही और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, यही होगा। सो एक्सप्लेनेशन भी वी कैन से द ट्रिपलेट की sp हाइब्रिडाइज होने के कारण, सो यहाँ पे कोई लोन पेयर रिपल्शन की बात नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली ट्रिपलेट कार्बन इसलिए मोस्ट स्टेबल है, सही है। सो स्टेटमेंट 1 आल्सो ट्रू, सेकंड आल्सो ट्रू, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली बात भी सही है, इसलिए ए हो। 23. द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इन द मॉलिक्यूल्स, ओके। सो इसमें देख सकते हो नाइट्रोजन जो है सिंगल बॉन्डेड है कार्बन के साथ, फर्स्ट केस सेकंड केस थर्ड केस, एंड लास्ट में तो ये बॉन्ड पेयर जो है दो दिख ही रहा है कार्बन नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड।
यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ कि 4 जो है सबसे लास्ट में आएगा, बट बाकी तीनों में क्या होगा वो देख लेते थोड़ा। अब कार्बन नाइट्रोजन में ये जो 2 है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो 2 जो है उसकी बॉन्ड लेंथ तो सबसे ज्यादा होगी ही होगी। तो मुझे ये पता है कि सबसे लास्ट कौन है, सबसे पहले कौन है, बीच का थोड़ा देख लेते हैं तो फिर। सो 23 इसमें तो फिर हो गया। नेक्स्ट वो पहला जो है एनिलीन एंड थर्ड जो है उसमें, अब थर्ड जो है उसमें ये नाइट्रोजन जो है बिकॉज ऑफ द बिगर मिथाइल मिथाइल ग्रुप अटैच टू इट वो 3 डिग्री हो गया, तो वो आराम से वो रिजोनेंस नहीं कर पाएगा, और अगर वो रिजोनेंस यहाँ पे नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे देख सकते हो CN बॉन्ड लेंथ ना, तो इसमें CN इसमें हो गया CH3 तो ऑर्डर में लिखूं, सबसे ज्यादा 2 का होगा एंड सबसे लास्ट 4 का होगा। अब 1 एंड इसमें अगर देखा जाए 3 में, हाँ तो 3 के केस में एंड 1 के केस में 1 में रिजोनेंस ज्यादा होगी एंड 1 में रिजोनेंस ज्यादा होने के कारण बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होने के कारण बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा ज्यादा होगी, और अगर 1 का बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा ज्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम होगी 3 से, इसीलिए पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा, सही है। सो 23 क्या होगा तो फिर ऑप्शन ए। 24 आईपीसी नहीं, तो ये तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, तो बाइसाइक्लो 2.2.2 होगा, देखो तीनों ब्रिजेस में दो कार्बन है, और इसमें ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन है, 8 है कार्बन। लेकिन ध्यान देना कोई भी एक जो 2 पॉइंट है ना ब्रीचर, उसमें से कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, तो ये 1 2 में कीटोन दिखाई दिया, 2 के बाद 3 4 5 6 में कीटोन दिखाई दिया, तो उसका नाम जो भी है बाइसाइक्लो 2.2.2 ऑक्टेन 2 6 डायोन दैट इज बी। सो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 25, तो 25 में देखते हैं, ये एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है बट इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट जो है नीचे दिखाई दे रहा है क्रॉस टाइप का, तो ये क्या है कार्बन ऐसे फिर इधर कार्बन कार्बन, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। सिंपल कुछ नहीं करना, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, तो इसको किधर से ढूंढोगे, राइट साइड से काउंट करना, ठीक है। 1 2 3 4 में वो आ गया, फिर 4 5 में फिर इथाइल आ गया, 5 6 7 8 8 का, सो ये इसका नाम तो ऐसे 8 का होगा यानी कि ऑक्टेन होगा, बट ये देखते हैं कि फोर्थ पोजिशन में है क्या। तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 25 में कुछ इस प्रकार से है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पोर्शन तो इथाइल हो गई सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे जो है ये 1 डैश ये 2 डैश, और 1 डैश में फिर इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल है, ये 1 1 डाई मिथाइल इथाइल है। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है तो बताओ, फोर्थ पोजीशन में 1 1 डाई मिथाइल इथाइल है ना, फोर्थ 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, 5 इथाइल ऑक्टेन, इस टाइप का जो ऑप्शन है वही है। 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैकेंट ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ये हो जाएगा तुम्हारा डाइबोरिन, ठीक है। डाइबोरिन का स्ट्रक्चर ध्यान से देख लेना है, देयर विल बी लाइक यू कैन से ना, उसको तो पढ़ते ही हो, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इन डाइबोरिन, दैट इज लाइक बनाना बॉन्ड बोल सकते हो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है। 27 27 S1 S2 S3 S4 चार स्टेटमेंट है, उसमें ट्रू फॉल्स या फॉल्स 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 जो भी है वो बतानी है। पहला, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट शुड बी हाई, नो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो भी होगी वो जैसे मेटल्स वगैरह हो गया तो उसकी आयनाइजेशन से कम होनी चाहिए ना, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा और कैटायन बन पाएगा, तो फॉल्स। तो पहला S1 फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, Na2CO3 कैन बी आइसोमॉर्फस विद K2CO3 एज बोथ हैव सिमिलर फॉर्मूला टाइप, यस। सो ऐसे बोल सकते हैं ट्रू, पहला वाला फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है, फॉल्स ट्रू। थर्ड है जिनोन O3F2 हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल जिनोन एटम, तो सेंट्रल जिनोन एटम में तो नहीं है लोन पेयर, तो फिर फॉल्स है। एंड लास्ट SO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, वो ट्रू है, यानी कि फॉल्स ट्रू है ना। अगर किसी को इसमें ये है तो एक बार देख लेना है जिनोन का जो है XeO3F2 का स्ट्रक्चर, तो देखो यहाँ पे हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन रहेंगे,
3+2, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो भी होगी sp3d2 होगी, ठीक है। sp3d2 बनाते हैं इसकी sp3 3+2 और 5 हुआ sp3d होगी, sp3d, ओके, sp3d। सो जिनॉन यहाँ एफ डाल देते हैं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। खुद देख सकते हो टोटल जेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन में से 1 2 3 4 5 6 7 8 सब यूज हो चुके हैं। देयर इज नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। सो xenon O3 have to have one lone pair, वो गलत है, SO2 is an sp oxide। सो false true आया मेरा आंसर, false true 4 स्टेटमेंट के लिए 27 का। अब कौन सा होगा ये? false true बी। सो 27 के बाद चलो आगे। Which of the following pairs does not contain isomorphous species? तो C तो कंटेन करता है, फिर KClO4 एंड KBF4, फिर BSO4 KMnO4 वो भी। NaClO3 एंड NaNO3 नहीं करेगा, क्योंकि NaClO3 एंड NaNO3 में ये Na तो ठीक है, बट ClO3 माइनस एंड NO3 माइनस दोनों की हाइब्रिडाइजेशन अलग है। सो क्वेश्चन नंबर 28 में डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ClO3 माइनस एंड NO3 माइनस दोनों के हाइब्रिडाइजेशन अलग है। सो ClO3 माइनस अगर देखोगे O3 है ना, Cl का वैसे 7 होती है, 8 हो गया, O से 3 गया तो 6 1 हो गया, मतलब ये sp3 होगी और एक sp2 होगी, ये sp3 होगी और ये sp2 होगी, ठीक है। ध्यान देना हाइब्रिडेशन अलग है तो उसका स्ट्रक्चर सेम नहीं हो सकता, आइसोमॉर्फस नहीं हो सकता। 28 के बाद 29 में ये लास्ट ऑप्शन डी हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन मोनोक्लोराइड जो दिया हुआ है लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स नहीं है, ठीक है, वैन डेर वाल्स डिपेंड होगी। सो ये जो है which of the following is not correctly matched, तो वो डी होगी, ठीक है। 29 डी। Among NH3, PH3, ASH3, SBH3 are the one with highest boiling point उसी का होगा ना जो सबसे नीचे होगी और जिसके मोलिकुलर मास हायर होगा, बिगर साइज होगी SBH3, ठीक है। तो ये आंसर भी हो जाएगा बी 31। The true statement from the following are PH5 and BaCl5 does not exist. p-pi bond present in SO2, ठीक है, वो दोनों तो सही है। Electrons travel at speed of light, जरूरी नहीं है, it depends on the matter. Then SeF4 and CH4 have same shape, no. Then I3 plus has band geometry, yes. तो ये हो गया तुम्हारा 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो 1 2 5 are correct. So true statement 1 2 5 यानी कि B. So 31 का ऑप्शन B सही है। 32 OO bond length in HOOH, अच्छा HOOH and FOOF, इसमें ध्यान देना F में परसेंटेज P कैरेक्टर ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे और यहाँ पे परसेंटेज P कैरेक्टर क्या है? बढ़ा, तो इसके बीच में क्या बढ़ेगा? तो फिर परसेंटेज S बढ़ेगा, है ना। और यहाँ पे क्या है? परसेंटेज S बढ़ा, परसेंटेज S, यानी कि बीच वाले में परसेंटेज क्या बढ़ेगा? P। तो देखो यहाँ परसेंटेज P बढ़ा है, यहाँ S बढ़ा है, which will lead to more length, यहाँ पे लेंथ ज्यादा होगा, लेंथ हाई हियर, ठीक है। सिंपल। तो इसका मतलब लेंथ हाई मतलब दो ऑप्शंस में देखो डी एंड सी तो हो ही नहीं सकता, दोनों में इक्वल इक्वल बराबर वैल्यूज है। ए या बी में से कौन सा होगा? तो पहले तो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि HOOH मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंक जो है उसका लेंथ ज्यादा दिख रहा है हमें। सो वी कैन से 1/4 बी। 33 statement 1 delta bond are formed by 4 lobes, हाँ। dz square orbital does not have nodal plane, हाँ, but not the correct explanation। dz square का ये nodal plane नहीं है, वो रीजन नहीं है स्टेटमेंट 1 का, तो यहाँ पे बी होगा। कि दोनों सही है अपने आप में, स्टेटमेंट सही है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। 34 में तो सब वैल्यू दिया हुआ ही है, CBM 5 कैलोरी दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इनिशियल 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 लीटर टू स्टेट जहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वॉल्यूम 10 लीटर। देख सकते हो यहाँ पे T2 T1 V2 V1 दिया हुआ है, ठीक है। सो NCBM T2 by T1, ठीक है, NCBM ln T2 by T1 30 कितना 4। सो NCBM ln T2 by T1 कर लो, फिर नेक्स्ट NR ln P2 by P1 कर लो। तो देखो
ये n जो है 1 मोल है, CVM क्या है 5 है, ln T2/T1 में कितना होगा T2, इट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है 373 एंड T1 मतलब 25 डिग्री से है 298 प्लस nr, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स 1, r मतलब क्या है, तो r is 2 कैलोरी, यू हैव टू टेक ln V2/V1 में कितना 10/1, सो ये कहीं दिख रहा है तो वही टिक करो, हाँ, सो द आंसर विल बी B. If a certain mass of gas is made to undergo separately adiabatic isothermal expansion to the same pressure starting from the same initial condition of a pressure, then as compared to that of isothermal expansion in the case of adiabatic expansion, the final volume and temperature will be what? Final volume and temperature will be lower. So इसमें हो जाएगा P. 36. Solid CaSO4.2 is taken in a container fitted with frictionless piston initially containing no other gases. The external pressure is maintained at 1 atm and the container is heated till the equilibrium stage. तो इसमें एक काम कर सकते हैं, delta H is given, change in enthalpy given, change in entropy given, and what temperature equilibrium. अच्छा equilibrium का क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन नंबर कितना था वो 36. तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है तो क्या करोगे, डेल्टा जो जी होगी वो जीरो होगी. अब हम जानते हैं डेल्टा जी को डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस व्हिच इज जीरो, यानी कि ये जीरो है, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस, डेल्टा एच इक्वल्स टू टी डेल्टा एस. अब डेल्टा एच भी दिया हुआ है, डेल्टा एस भी दिया हुआ है, टी तो आ गया ना. सो व्हाट इज टी, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस. व्हाट इज डेल्टा एच, डेल्टा एच इज 30 और फिर डेल्टा एस कितना है 40. तो थोड़ा ध्यान देना है लेकिन देखो, at what temperature equilibrium will be established in the container, ignore variation of delta H and delta S. Temperature. में 30 किलो कैलोरी पर मोल और ये है 40 कैलोरी पर केल्विन ना, 40 ये 30 किलो कैलोरी मतलब 10 टू द पावर 3. तो ये तो गया, तो ये 3 रखती हूँ 1004 now 750 केल्विन इज योर आंसर. ठीक है, सो ये 36 का 750 केल्विन यानी कि आंसर 36 का आंसर है बी. Question number 37. So question number 37 में if we see aniline behave as weak base, okay, when 0.1 molar 50 milliliter solution aniline was mixed with aniline जो है उससे एक लोन पेयर वो कर सकता है जैसा weak base having n factor 1 और HCl हो गया एसिड उसका भी n factor 1, दोनों का n factor 1 है, तो दोनों के अगर हम देखेंगे 0.1 मोलर 50 ml दिया और वो दूसरा जो एसिड है 0.1 मोलर 21 मोलर 25 ml, तो ऑब्वियसली एसिड कम अमाउंट में है, एसिड खत्म हो जाएगी, लिमिटिंग रिएजेंट है, और एसिड अगर 25 ml into 0.1 मोल है यानी कि कितना हुआ 2.5 मिलीमोल के साथ अगर 2.5 मिलीमोल यूज करेगा यानी कि बच जाएगा 25 ml 0.1 यानी कि 2.5 बच जाएगा फ्रॉम द एनिलीन, यानी कि फाइनली जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसमें वीक बेस रहेगा जो कि 2.5 मिलीमोल होगा और इसमें pH of resulting solution is 8. अच्छा pH दिया हुआ है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का H. सो यहाँ पे ये जो भी बनेगा ठीक है वीक बेस एंड इट्स ओन सॉल्ट बनेगा, यानी कि बेसिक बफर का क्वेश्चन है, ठीक है बेसिक बफर का क्वेश्चन है ये, वीक बेस एंड इट्स ओन सॉल्ट. तो इसमें काम कर सकते हैं POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन बाय बेस कंसंट्रेशन, ऐसे कर लेते हैं. सो POH, अब pH दिया हुआ था 8 अगर pH है तो POH कितना होगा 6 PKB, ठीक है. अब log salt by base, अब salt कितना, अब salt अगर देखोगे at that time of equilibrium तो salt कितना फॉर्म हुआ 2.5 और फिर बेस कितना फॉर्म हुआ, मतलब बेस कितना बच गया वही 2.5 मिलीमोल. तो ये दोनों सॉल्व अगर कर देंगे ये पोर्शन इट यू विल गेट व्हाट, ये तुम्हारा सेम इक्वल अमाउंट है ना log 1 दैट इज 0, ठीक है, यानी कि PKB इक्वल टू 6 मिल जाएगा. PKB अगर 6 है तो KB कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 6, सो द KB विल बी 10 टू द पावर माइनस 6, वहां तक तो ठीक है. नाउ जब ये
एनिलीनियम जो है वो फिर हाइड्रोलाइसिस दिखाएगा, ठीक है ना। सो हाइड्रोलाइसिस जब दिखाएगा तब तुम्हारा जो के एच होगा, के एच इज व्हाट, के डब्ल्यू बाई के बी, है ना। सी यानी कि सी एच स्क्वायर बाई 1 माइनस एच विच इज सी एच स्क्वायर। ध्यान देना है व्हाट इज सी एच। सो सी एच और कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, सी एच जो है दैट इज इक्वल्स टू योर सी के डब्ल्यू बाई के बी, ठीक है। सो ये H प्लस कंसंट्रेशन अगर निकालना है तो ये C कंसंट्रेशन 0.01 था यानी कि 10⁻²। फिर ये KW होती है 10⁻14 एंड KB कितना हमने अभी तो निकाला 10⁻6। ये पूरा सॉल्व करते हुए तुम्हें आ जाएगा 10⁻5। और 10⁻5 अगर H प्लस है तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज PH, तो PH ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा, PH विल बी 5। सो फाइनली हमें क्या मिला, PH विल बी 5। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बेसिक पापा, ठीक है। Next, 38. KH for 0.01 molar NaOCl is 10⁻6. Find out the ionization constant of HOCl and also degree of hydrolysis of the salt at the concentration. ये तो तुम्हारा वही KH equals to KW by Ka यूज करना है। हाँ, and H equals to KH by C यूज करना है। तो इसका आंसर क्या था, 37 का ऑप्शन देख लेती हूँ कितना वैल्यू है। 5 मतलब सी था। अब 38 का देख लेते हैं। सो इन 38 KH पर 0.01 मोलर NaOCl is this much, ओके। सो इसमें हो जाएगा Ka, फाइंड आउट आयनेशन कांस्टेंट ऑफ HOCl मतलब Ka भी पूछा है एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस मतलब H भी पूछा है। H इज KH by C, उधर उस हिसाब से कर लेंगे। और ये है Ka, सो Ka कितना, उसके लिए क्या कर सकते हैं, KH इक्वल्स टू KW by K, वहाँ से Ka इक्वल्स टू KW by KH हो जाएगा। और 10⁻14 KW है, KH कितना दिया हुआ था 10⁻6, उस हिसाब से हो जाए तो 10⁻8 था K। हाँ, ये वाला हो जाएगा। तो ये कितना होगा, H 10⁻2 100% तो 1। सो ये क्वेश्चन जो है दिस इज रिलेटेड टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, तो ये हो गया ऑप्शन 10⁻8 and 1% कहाँ है, C, 38C। Now 39. KH, the hydrolysis constant of salt NaA, NaB, 10⁻8, 10⁻10 respectively. If the dissociation constant of Ka for weak acid AC is 10⁻5, then decreasing order of the acidic strength would be, okay, decreasing order of the acid strength. Decreasing order of the acid strength would be, इसमें 10⁻8 है, एक 10⁻10 है और एक 10⁻5 दिया हुआ है K। ओके, HC जो है उसका K दिया हुआ है, वो 10⁻5 है। बाकी दोनों का निकालना पड़ेगा HA एंड HB का, है ना। उन लोगों का जो 10⁻8 है 10⁻10 है ना, वो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है मतलब KH है। सो KH दिया हुआ है HA का 10⁻8 और इसका KH दिया हुआ है 10⁻10। इसके लिए अगर लिखोगे सिंस KH इक्वल्स टू KW by KA यानी कि K इक्वल टू 10⁻14
बाय ये आ जाएगा 10⁻8, ये हो जाएगा 10⁻6 और दूसरे का के ए इक्वल्स टू वही 10⁻14 बाय 10⁻10 होगा, तो ये 10⁻4 होगा। यानी कि ये बोला जाए तो ये मिडिल में आ गया ना। सबसे ये जो सेकंड है एच बी, उसकी असिस्टेंट ज्यादा होगी देन एच सी की होगी एंड इसकी सबसे एच ए की लास्ट में होगी। सो द एच बी एच सी एच ए इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर क्या होनी चाहिए तो फिर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40। 106.2 gram 1 molar aqua solution of Italian glycol is cooled to -3.72 degree centigrade. Mass of ice separated during cooling is Kf दिया हुआ है. Okay, so this is depression in freezing point question, that is from colligative property solution. So freezing point of water 0 degree centigrade. Okay, so क्या करना है, given mass of the solute दिया हुआ है, 1 molar aqua solution बोल के लिखा हुआ है, Italian glycol sample है और इसमें डेल्टा टी एफ जो भी है, ठीक है, चेंज एंड सारे दिए हुए हैं। सो मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg। सो मास ऑफ सॉल्यूट, सो 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। तो एक्वा सॉल्यूशन अगर लिया जाए 1 मोलर मतलब होता है मोलारिटी 1, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स 1 है पर केजी सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो क्या हो गया वाटर, तो 1 kg सॉल्वेंट ले लो तो उसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, दैट इज 1 मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। तो इथिलीन ग्लाइकोल मींस CH2OH अगर उसको प्लस करेंगे ना एटॉमिक मास, देन वी विल गेट मोलर मास ऑफ 62 ग्राम। तो वहां से इतना तो क्लियर हुआ कि मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट in 1 kg solvent, that is 1 kg water is equal to 62 gram। और मुझे 1 kg water के लिए इनको नहीं चाहिए, I require mass of solute in 106.2 gram solution, है ना, क्योंकि मैंने तो 106.2 ग्राम 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो 1 kg वाटर के बारे में बात था और जिसमें 1 kg वाटर मतलब सॉल्वेंट में 62 ग्राम सोल्यूट था, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर दो, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम प्लस 62 मतलब हो गया 1062, 1062। ठीक है, 1062, ओके, सो 1062 सॉल्यूशन, यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ कि 62 ग्राम होता है 1062 में इनटू, और ये कितना 106.2, तो ये हो जाएगा 10 यानी कि 6.2 ग्राम, है ना। अब वो वैल्यूज तो पता ही है कितना दिया हुआ है 3.72 एंड दिस 3.72, क्योंकि देख सकते हैं द डेल्टा जो चेंज होगी, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में था, हुआ कितना कम होके -3.72 तक पहुंच गया, तो 0 से 0 माइनस 3.72, दैट इज योर 3.72। तो जो भी डेल्टा टी एफ है ना, सो डेल्टा टी एफ इज योर 3.72 एंड डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, मतलब एम फॉर मोलालिटी, तो के एफ कितना था 1.86 एंड ये वाला, ठीक है। और फिर मोलालिटी के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्वियसली मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स पर सॉल्वेंट, सो इन केजी, तो ये हो गया सॉल्वेंट का वेट इनटू 1000, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 50 ग्राम। सो मास टू बी सेपरेटेड इज 50 ग्राम, दैट इज बी। Now let's come to 41. Question number 41. 41 में वेपर प्रेशर रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो रॉल्स लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो पी आइडियल निकालने की कोशिश करो। इसमें पी आइडियल निकालने के लिए वही पी नॉट ए एक्स है प्लस पी नॉट बी एक्स पी करके देखो। सो इसमें एक में तो पी नॉट कितना था 300 था, एक में 800 था, और जो 800 वाला है ना वो 92% लेने बोला है, और दूसरा तो फिर ये अगर 92% है, ये कितना होगा 8% है ना। सो 8% मतलब 0.08, so 0.08 into P नॉट है कितना था 300 प्लस 0.92 मतलब 92% मतलब 0.92 into 800, ये पूरा अगर हम तौर कर लेते हैं then it will be 760 तौर 180, okay, and P actual equals to 0.95 दिया हुआ है, वो देख सकते हो। The second sentence in the question number 41 is when these two liquids are mixed at this temperature to form a solution in which mole percentage of B is 92, then the total vapor pressure is observed to be 0.95 AT.
ठीक है। सो ये 0.9580 से कम। तो देख सकते हो जो पी आइडियल उससे पी एक्चुअल घटा, घटा मतलब नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ मतलब डेल्टा एच मिक्सर इज लेस देन 0 या फिर डेल्टा वी मिक्सर लेस देन 0, ये सारे पॉइंट्स जो थे। सो डेल्टा एच मिक्सर लेस देन 0 क्योंकि डेल्टा वी मिक्सर लेस देन 0 नहीं है, सो यही हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42। सो क्वेश्चन नंबर 42 में अगर देखा जाए, a weak monoprotic acid molar mass 180, aqua solution 0.18%, weight by volume, weight by volume का मतलब ये हुआ 0.18%, मतलब जो ये 0.18% परसेंट का मतलब हो जाएगा तुम्हारा इसमें 0.18 ग्राम ऑफ वेट, मतलब जो भी सोल्यूट है इन वॉल्यूम लेंगे 100, ठीक है। सो 100 में से 0.18 इसका मतलब है, तो 100 मिलीलीटर वॉल्यूम अगर लो तो 0.18 है। तो मैं एक काम करती हूँ, 100 मिलीलीटर ना सोच के 1000 सोचती हूँ। अगर 100 को मैंने 1000 कर दिया, एक जीरो लगा दिया, तो 0.18 में एक जीरो लगा दो तो 1.8 हो जाएगा, मतलब एक 10 इंटू कर दो तो 1.8 हो जाएगा। सो उस हिसाब से हम डायरेक्ट यही इमेजिन करेंगे कि 1000 ml मेरे पास है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन, और उसमें 1.8 जो है वो वेट ऑफ द सॉल्यूट है, और मोलर मास तो पता ही है, तो गिवन मास मोलर मास इफ यू नो बोथ देन यू कैन फाइंड आउट द मोल्स। मोल्स भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो वहां से मोलारिटी आ गई, और अगर मोलारिटी आ गई तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू ICRT तो हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है वेंटो फैक्टर, मतलब आई निकालने के लिए पूछा गया है। तो पाई कितना दिया हुआ है ऑलरेडी 0.369। अब आई निकालने दिया है, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल, मोल मतलब 1/8 और 1.8 बाय हो जाएगा 180, है ना, ये मोल, और 1 लीटर ऐसे ले लेते हैं, एंड आर मतलब 0.0821, टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर ऑफ आई 43। अब आंसर जो है देख लेती हूँ 42 में कितना होगा। सो 42 1.8 बाय 180 कैंसिल अगर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, फिर उधर 0 0 के साथ 0 0 से कैंसिल हो गया, यानी कि रहा 3 एंड 0.081 समथिंग, वेरी स्मॉल वैल्यू वी विल गेट। से डिवाइड करनी होगी 0. आई हो जाएगा 1.5, so the option will be B 1.5. कंसिडर द रिएक्शन CH2CH2CH2OH PCl5, तो PCl5 डालने पर OH के जगह Cl आ जाएगा, तो CH2CH2CH2Cl हो जाएगा। फिर उसमें अल्कोहलिक OH डालोगे तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगी, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगी, दैट इज द E2 मैकेनिज्म, है ना। और बीटा एलिमिनेशन, तो वहां से तुम्हारा कितना कार्बन है 1 2 3, तो प्रोपीन बन जाएगी, सिंपल, है ना। सो 43, ठीक है। सो ये CH3 CH2 CH2OH में PCl5 डालोगे तो ये OH की जगह Cl आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 Cl। अब फिर उसमें अल्कोहलिक की OH देके अगर हीट कर देते हैं तो फिर ये Cl यहाँ से जाएगा और नेक्स्ट से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, सिंपल, प्रोपीन बनेगा। सो प्रोपीन बनेगा तो ऑप्शन बी है 43, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, अनसिमेट्रिकल ईथर आर बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय, तो ये तो अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए विलियमसन सिंथेसिस जैसे, लेकिन क्या लिखा हुआ विलियमसन मींस कंटीन्यूअस एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन नहीं, इथरिफिकेशन, इथरिफिकेशन मतलब ईथर प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट रिएक्टिंग ग्रिग्नार्ड रिएजन विद एल्काइल हैलाइड बनाना है ईथर अनसिमेट्रिकल, ग्रिग्नार्ड रिएजन विद एल्काइल हैलाइड, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजन इज RMgX, वो ब्रेक होगा तो MgX प्लस एंड
आर माइनस अगर आएगा भी अल्काइल हैलाइड के पास तो एल्काइल के पास आएगा तो आर प्लस, तो आर प्लस नहीं, वहां से तो ईथर नहीं बनेगा। बी तो नहीं है। सी देखते हैं ट्रीटिंग सोडियम एल्कोक्साइड विद एल्काइल ब्रोमाइड। हाँ, एल्काइल ब्रोमाइड से ब्रोमाइड बहुत इजीली निकल जाता है तो एल्काइल पोर्शन हो गया। और ट्रीटिंग सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड बहुत इजीली स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आके अटैक करेगा, तो वो एल्कोक्साइड पोर्शन यानी कि OR डैश जो है ना, सो RO माइनस आया मान लो, R में अटैच हुआ, हाँ तो इससे ईथर बन सकता है C में। एंड हीटिंग एंड एल्कानोल विद, सो यहाँ पे C हो जाएगी, ट्रीटिंग सोडियम एल्कोक्साइड विद एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, सो 44 C एंड 45 कंसिडर प्रोडक्ट। सो 45 में कुछ इस प्रकार का 5 मेंबर रिंग है, इधर मिथाइल है, फिर इधर CH, उस पे OH है, फिर इधर CH3 है, H plus concentration and then heat they require. तो first of all H plus concentration it will come OH पे attack, तो इसको बना लेगा OH से H plus यानी कि OH2 plus, that is a good living group, उसको निकाल दो। निकाल देने पर एक कार्बोकेटायन बनेगा, मैं डायरेक्ट कार्बोकेटायन ही लिख रही हूँ यहाँ, ठीक है, यहाँ प्लस। अब यहाँ 5 मेंबर रिंग के बगल प्लस है तो उसको ब्रेक करो, प्लस के बगल में यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ माइनस, फिर उसको ज्वाइन करो, 1 2 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से आपको 6 मेंबर रिंग मिल जाएगा। 1 2, ये 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6। अब 1 में मिथाइल है, ऐसे मिथाइल लगा दो, और 2 में एक मिथाइल है, 2 में एक मिथाइल लगा दो, और 2 में गया प्लस, बाकी तो ठीक है, तो ये मिला। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हिट करना है, मतलब प्लस के बगल से यहाँ से या यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे डबल बॉन्ड यहाँ होगा, यहाँ से निकालोगे डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ होने से मोर स्टेबल होगा, इसीलिए यहाँ से ठीक है हाइड्रोजन निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड लाने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड, तो दिस इज योर सेट प्रोडक्ट। सो विद दिस इज ऑप्शन बी। ओके, सो इजी है ये पेपर बहुत ही। सो इसमें सब लोगों का यहाँ पे कोई भी डाउट होना ऐसे जरूरी नहीं है अभी, ठीक है ना। सो एवरीवन गो थ्रू द सॉल्यूशन नाइसली, कोई भी है तो पर्सनली यू कैन आस्क मी इन एनी ग्रुप, है ना। सो ये सॉल्यूशन मैंने बताया जो है, दिस इज मी टू ना, तो सॉल्यूशंस का अगर वीडियो के साथ साथ किसी को अगर यही पेजेस चाहिए PDF फॉर्म में चाहिए या फोटो, तो ग्रुप पे एक बार मांग लेना, मैं भेज दूंगी, ठीक है, या फिर यू कैन जस्ट टेक्स्ट मैसेज मी, ठीक है, डायरेक्टली। हाँ, तो इसमें लेकिन एक चीज ध्यान देना, आज के क्वेश्चन पेपर तो चला गया, बट एक चीज ध्यान देना, 4 के जो सारे ऑप्शन, ठीक है, ऑल 4 ऑप्शंस आर सेम, तो इसीलिए जस्ट कॉन्सेप्चुअली चीजों को देखो, यू विल गेट मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन सही है, ठीक है। सो हो गया, एक बार वीडियो सॉल्यूशंस को सब लोग देख लेना। चलो, आई एम एंडिंग द सॉल्यूशन हियर। चलो, तो टोटल 45 क्वेश्चंस।